Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7. Welcome back to science class. I'm your science teacher from Dr. A.Q. Khan School System, Wahkend. Week is 4 and the day is 2 of your science lecture. As you know that we were studying chapter number 2, organ system in human beings. We have studied the topic digestion, how digestion occur, what is the definition of digestion, which important organs are necessary for the digestion. Today on page number 14 we will study what are the dietary fibers and what are the disorders associated with the digestion. Okay? So, organ system in human beings. The topic number 1 on page number 14 is dietary fibers. Dietary means diet and fiber meaning small thread-like structures. Okay? The diet that contain fibrous structures in it, these diets are called dietary fibers. अब मैंने आपको डाइजेशन में बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में टावल के ऊपर जैसे थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे से प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें वो क्या होता है, उसमें से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन से हम बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फाइबर्स विलाई जिन्हें हम कहते हैं, उनकी होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिजीज़ से बच जाते हैं। अगर वो विलाई ना हो तो हमारी डाइजेशन कम्प्लीटली तौर पे नहीं होगी, ठीक है। Dietary fibers, the diet that contain fibers in it is called dietary fibers. What are the dietary fiber? It is a type of food that cannot be digested by our body. It is a kind of food. Dietary fibers are the carbohydrates that are present in our diet that cannot be digested by our body, that remain undigested. Digested meaning to be absorbed completely by the body, no remaining part. So dietary fibers are not digested by our body, they remain in the intestine for a long time. It allows more water to remain in our feces. Feces is the stool or the waste product which we excrete. Okay? What is the function of dietary fibers? Dietary fibers allow more water to remain in the feces. Dietary fibers are present in green leafy vegetables, they are present in fruit. That's why it is said that eat more green food to avoid constipation. जब हम डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो फीसेस प्रोड्यूस हो रही होती है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे। जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनडायरेक्टली हमें कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी हार्ड स्टूल दैट इज़ वेरी अनएबल टू बी एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी. सो डाइटरी फाइबर्स अलाउ मोर वाटर टू रिमेन इन द feces and they are present in leafy green vegetables, fruits, and they cannot be digested by our body. That's why they prevent many kind of diseases, just like the constipation. Next topic is disorders. First of all, look at the word disorder. Only order mean to work in a particular way, to work in a similar condition. एक आप ऑर्डर में चल रहे होते हैं, ठीक है। अब डिस का मतलब होता है नो ऑर्डर, डिस मीनिंग नो। जब एक बॉडी के अंदर एक जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स जो होती हैं सारी हमारी बीमारियां होती हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब हमारा एक बॉडी का ऑर्डर ही ख़त्म हो जाता है उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स आर द मेलेडीज, द malfunctioning of the body when the body is not functioning properly
वी डिनोट दिस टर्म एज द डिसऑर्डर सारी बीमारियाँ होती हैं बॉडी की, ठीक है। आपकी बुक में दो मेलेडीज दी हुई, इनडाइजेशन एंड अल्सर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनडाइजेशन, डाइजेशन मीनिंग हज़म हो जाना, एंड इन मीनिंग नो, जब खाना हज़म नहीं होगा उस कंडीशन को हम कहेंगे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन किस तरह होती है? जब हम ईटिंग क्विकली एंड नो ईटिंग, एक तो कंडीशन है कि अगर हम खाना ही नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा हमारा लंच और डिनर में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, या फिर आप सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, नाश्ता कर रहे हैं तो रात का खाना खा रहे हैं, ये होता है कि आप नो ईटिंग, खाना ही नहीं खा रहे। और दूसरा, अगर खाना खाएं तो बहुत तेज़ खाएं, ठीक है। अब जैसे ही आप तेज़ खाते हैं, हमारे स्टमक को सिग्नल मिल जाते हैं कि खाना, फूड एंटर हो रहा है बॉडी में, वो जल्दी इतना स्टमक में एसिड बना देता है कि हमारा खाना ओवरलोडेड हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमने खा लिया, लेकिन हमने खाया नहीं होता। हमें क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि खाना बहुत ज़्यादा है? क्योंकि स्टमक में हम लोग जितना तेज़ खा रहे थे, तो उसी स्पीड से हमारा स्टमक के एसिड प्रोड्यूस कर रहा था कि ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। लेकिन हम इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे तेज़ी खाने से कि हमें लगता है कि हमारा खाना हज़म ही नहीं हुआ। इसका फिर नेगेटिव पॉइंट क्या है? हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है। डायरिया मीनिंग मोशन लग जाते हैं, ठीक है, डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं। द सेकेंड डिसऑर्डर इज़ द अल्सर। अल्सर इज़ द डिटोरिएशन ऑफ द स्टमक वॉल बाय द एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक। अल्सर्स क्या होता है? अल्सर जब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की इनटेक करें। कैफ़ीन कॉफ़ी में होती है, सॉफ्ट ड्रिंक लें, आप जंक फूड लें, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स बहुत ज़्यादा खाएं, उसकी वजह से क्या होता है? स्टमक के अंदर, मैंने बताया था, HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की वॉल्स को जो होता है वो, उस पहले मैंने बताया था ना, स्टमक जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो स्टमक की वॉल पे एक सलाइवा, एक थूक की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से स्टमक प्रोटेक्ट हो जाता है उस एसिड से। लेकिन अल्सर में क्या होता है? वो स्टमक में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और जो एसिड स्टमक प्रोड्यूस करता है फूड डाइजेशन के लिए, वो स्टमक की अपनी वॉल को डाइजेस्ट करने लगता है, और एक ना सोर से पड़ जाते हैं, एक क्या कहते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं स्टमक की वॉल्स पे, ठीक है। जब उस पे ज़ख़म हो जाएंगे, तब आप कोई भी खाना खाएंगे तो बेसिकली आपको इतना शदीद पेन होता है कि आप कुछ भी खाना, इवन दो कि आप बहुत सॉफ्ट फूड भी नहीं खा सकते, ठीक है। अल्सर इज़ द एंजाइम इन स्टमक ईट्स द वॉल ऑफ स्टमक। जो एंजाइम में स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, वो स्टमक की वॉल को खुद ब खुद ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली इसमें, कि स्टमक की वॉल्स अपने ही वॉल्स को डाइजेस्ट करने लगती हैं, ज़ख़म प्रोड्यूस हो जाते हैं, हम खाना नहीं खा सकते, और बहुत शदीद पेन होता है, ठीक है। कम ऑन बुक, पेज नंबर 14, फूड एंड हेल्थ। ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। ओबेसिटी मीनिंग मोटापा। जब आप एक हद से ज़्यादा खा लेते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ द रॉन्ग फूड सच एज फैटी, sugary and salty food is especially dangerous. Excessive animal fat in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substance that can stick to the wall of an artery. The artery become narrow, or so the flow of blood in it slows down, or the artery can become blocked and thus stop the flow of blood. Eating too much sugar can cause tooth decay. It can also cause obesity and high blood pressure. कोलेस्ट्रोल आपको पता है कि